Our two major topics, which are sexual and asexual reproduction in plants. Before proceeding to these subtopics, first of all, we will clear the terminology reproduction. What does the word reproduction means? As you know, the we have discussed about plant cells and animal cell in the previous video. As the cell, we I have told you the definition of a cell, that what actually a cell is. Cell is the smallest living thing that make up a living organisms. Cell are living things, so the feature of living thing is to breathe, to respire, to feed, to reproduce. These all the are the life processes. ये तमाम life processes हैं एक organism की life में. So the word reproduction, the term reproduction, it is also a process in living organism life. So moving toward the next slide, you learned about some life processes in the previous chapter. One of them is reproduction. The process of producing new organism from their parents is called reproduction. Reproduction एक ऐसा अमल है जिसमें जो हमारे पास पेरेंट्स हैं वो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं. लाइक एक प्लांट है, उस प्लांट की ब्रीडिंग हो रही है, वो प्लांट पॉलिनेशन कर रहा है और वो अपने साथ क्या नेक्स्ट प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन हैपन्स इन प्लांट्स, इट ऑल्सो हैपन इन एनिमल्स, इट ऑल्सो हैपन इन ह्यूमन बींग्स. टुडे वी विल डिस्कस reproduction in like plants. Today we'll डिस्कस द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का क्या प्रोसेस है. सो रिप्रोडक्शन इंश्योर्स दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट disappear from the earth. This process is very important for the continuation of the life on earth. So a point rise here, यहाँ एक point राइज होता है कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, या रिप्रोडक्शन व्हाट इफ हम क्वेश्चन करते हैं कि रिप्रोडक्शन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है कि एक स्पीशी की तादाद, उसकी पॉपुलेशन बढ़ती रहे ताकि वो हमारे लाइक एक इन्वायरमेंट में से बिल्कुल एक्सटिंक्ट ख़त्म ना हो जाए. दैट्स वाई रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन भी बन जाता है. यू कैन add the question from this point कि reproduction ensures that a group of organism does not appear from the earth. This process is very important for the continuation of life on earth. So the question is why reproduction is important. Reproduction is important for continuation of life on the earth. अब अगर हम बात करेंगे प्लांट्स के बारे में, तो प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय टू वेज. अब प्लांट्स के प्रोडक्शन के दो वेज हैं. फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड asexual reproduction. This is sexual reproduction, this is asexual reproduction. So reproduction हमने डेफिनेशन पढ़ी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाता है. ठीक है. और नेक्स्ट हमने पढ़ लिया कि प्लांट the parts of the plant can be divided into two groups, i.e. reproductive and vegetative parts. Here I'm going to show you the parts of the plant. देखिए जी, first of all this is the stem, these are the roots. अब यहाँ हम ड्रॉ करते हैं इसका लाइक फ्लोरल पार्ट. अब हमारे पास रूट, स्टेम, और यहाँ हम एक ड्रॉ कर देते हैं इसका लीफ. रूट, स्टेम एंड लीफ, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट. वेजिटेटिव पार्ट्स हमारे पास वो पार्ट्स हैं जो हमें लाइक वेजिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. तो स्टेम, रूट और लीफ, दीज आर वेजिटेटिव पार्ट्स. और जो प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज फ्लोर. हमारे पास प्लांट में फ्लावर वेजिटेटिव पार्ट है जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट है रूट, स्टेम एंड लीफ. रिप्रोडक्टिव पार्ट इंक्लूड्स ओनली फ्लावर while all other parts are called vegetative parts including root, stem and leaves. So in this slide we have learned that plants are divided into two groups. First is reproductive and second is vegetative. Flower is the only reproductive part of the plant and the other plant parts like vegetative parts of the plant are root, stem and leaves. Now we'll discuss the types of reproduction. We have
studied, like in the first slide we have studied that plants reproduce in two ways. First is sexual reproduction and second is asexual reproduction. So first we will deal with asexual reproduction. Have you grown, the first question here is, have you grown any cutting of the plant? like आपने कभी, आपको एक्सपीरियंस हुआ हो, आपने कोई प्लांट की कटिंग से लाइक प्लांट को ग्रो किया हो, या किसी सीड को यूज़ करते हुए आपने प्लांट को ग्रो किया हो। लाइक हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना छोटे होते, आप लोगों को एज अ टास्क मैं ये चीज़ भी दे देती हूँ कि आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। लाइक आपने पोटैटोज आपके घर पे, या आपके घर पे अनियंस हैं, आप क्या करेंगे, लाइक एक मट्टी लेंगे और उसमें उसको अनियन को कर देंगे, दबा देंगे। कुछ टाइम बाद उसको आप वाटरिंग, उसको वाटर देते रहेंगे। थोड़े टाइम बाद यू विल सी कि वहाँ पर जो है उसके अंदर से बर्ड्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गए और नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। ठीक है, कैन यू ग्रो प्लांट्स विदाउट यूजिंग सीड्स? क्या आप सीड्स के बगैर प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं? सो द आंसर इज यस, विदाउट सीड्स हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। नॉट ऑल द प्लांट्स, बट कुछ प्लांट्स को विदाउट सीड्स हम ग्रो कर सकते हैं। सो हम डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दैट व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो asexual reproduction involve formation of new plants from vegetative parts like root, stem and leaves. अब एज यू गाइज नो, हमने पिछली स्लाइड में क्लियर किया दैट वेजिटेटिव पार्ट्स हमारे पास सिर्फ रूट, स्टेम और लीव्स हैं। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिर्फ हम अपने वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करते हुए नया प्लांट बनाते हैं, जैसे कि रूट, स्टेम एंड लीव्स, इनको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, ग्रो करवाएंगे एक नया ऑर्गेनिज्म। तो this type of reproduction is called asexual reproduction. It does not involve formation of new plants from vegetative parts like root, stem and leaves. अब एज यू गाइज नो, हमने पिछली स्लाइड में क्लियर किया दैट वेजिटेटिव पार्ट्स हमारे पास सिर्फ रूट, स्टेम और लीव्स हैं। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिर्फ हम अपने वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करते हुए नया प्लांट बनाते हैं, जैसे कि रूट, स्टेम एंड लीव्स, इनको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, ग्रो करवाएंगे एक नया ऑर्गेनिज्म। तो this type of reproduction is called asexual reproduction. It does not require flower or seed formation. अब asexual reproduction में हमें फ्लावर की और सीड की ज़रूरत नहीं है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, रूट की, स्टेम की और लीव्स की। तो दिस इज ऑल अबाउट asexual reproduction. Now we'll move to our next slide, which is asexual reproduction produce organisms identical to their parents called clones, while sexual reproduction create new varieties. Can you identify which field of tulip is produced by asexual reproduction? अब यहाँ स्लाइड में आपको दो पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं। फर्स्ट आपके पास आ रही है दिस वन एंड सेकेंड इज दिस वन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिप्रोडक्शन नए ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं रूट, प्लांट की रूट, स्टेम और लीव्स को लेके, लाइक उनको हम सो कर रहे हैं, दबा रहे हैं, ज़मीन में लगा रहे हैं और वहाँ से प्लांट नया ग्रो कर रहा है, नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। उसमें हमें सीड की या फ्लावर की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब आपके पास दो वेराइटीज़ दी गई हैं। अब यहाँ ये पॉइंट हमने क्लियर कर दिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट डिटो कॉपी होगा अपने पेरेंट्स का, और इसको हम करेंगे क्लोन्स। तो यहाँ आप एक एडिशनल क्वेश्चन बनाएंगे, दैट इज डिफाइन क्लोन्स। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन क्लोन्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था व्हाई रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट। Second question is define clones. So clones are the organisms that are produced asexually and they are identical to their parents. While sexual reproduction में हमारे पास ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि आइडेंटिकल क्लोन्स हमारे पास बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास वेराइटी आती है। अब अगर आप इन दोनों पिक्चर्स को देखेंगे तो जो फर्स्ट वन है, फर्स्ट वन में हमारे पास सेम वेराइटी है। इसका मतलब है कि फर्स्ट पिक्चर में ये तमाम ट्यूलिप की
के प्लांट्स हैं ये अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल हैं, ये क्लोन्स हैं, इसलिए ये बने हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड में हमारे पास वेराइटी है, डिफरेंट किस्म के ट्यूलिप्स बने हैं, दैट्स वाई सेकंड जो है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक को वाइंड अप करने से पहले एक मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में बता दूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की काफ़ी सारी टाइप्स हैं और इनको क्लासिफाई किया गया है। इसकी मेन टाइप्स में हमारे पास आ जाती है नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यू कैन से प्रोपगेशन। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से आई थिंक आप दी है नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यू कैन से प्रोपगेशन। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से आई थिंक आप सबको क्लियर हो चुका है। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ और वे ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ सबसे पहले जी आपके पास शो हो रहा होगा एक लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। सबसे पहले हम लोग इसको रीड आउट कर लेते हैं इस स्लाइड को। डू यू लाइक टू ग्रो प्लांट्स? क्या आपको प्लांट्स उगाना पसंद है? ऑब्वियसली हमारे बचपन में हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं कि हम लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं कैसे। एक सीडलिंग लगाया, सीड लगाया आपने, या आप सीड नहीं भी लगा रहे तो देर इज़ अ प्रोसेस ना विच इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। अब इसको हम डिस्कस करेंगे। हैव यू ग्रोन एनी सीडलिंग? क्या आपने सीडलिंग से कभी प्लांट लगाया? ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम द सीड्स। जितने भी प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं वो सीड से ग्रो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। The male gametes are inside pollen grains and female gametes are present in the ovule. अब जी प्रोसेस होता क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? हमारे पास दो चीज़ें हैं। फर्स्ट हमारे पास पार्ट होगा मेल, सेकंड पार्ट होगा फीमेल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल के गैमीट्स, गैमीट्स आर सेक्स सेल्स, उनका फ्यूजन होना इंपॉर्टेंट है। जब वो फ्यूज होंगे तो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब जो मेल के गैमीट्स हैं वो पोलन ग्रेन्स में बनते हैं और फीमेल के गैमीट्स बनते हैं हमारे पास, हाईलाइट यू कैन हाईलाइट दिस पॉइंट, कि मेल गैमीट्स बनते हैं पोलन ग्रेन्स के अंदर और फीमेल गैमीट्स होते हैं ओव्यूल के अंदर। अब अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है। यहाँ आप हमारे पास लाइक दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। ये आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है विच इंक्लूड एंथर एंड फिलामेंट। इस एंथर के स्ट्रक्चर को अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो इसके अंदर यूं पोलन ग्रेन्स लाइक पोलन सैक्स मौजूद होते हैं एंड द फिलामेंट जो है इसके नीचे उसको सपोर्ट करने के लिए, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब ये जो मिड वाला एरिया है दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको अगर मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ड्रॉ करके दिखाऊंगी तो ये कुछ इस तरह का आपके पास आता है। फर्स्ट आपके पास ऊपर स्टिग्मा आ जाता है, नीचे स्टाइल आ जाता है, सबसे लास्ट पे इसकी ओवरी आ जाती है और ओवरी के अंदर हमारे पास ओव्यूल्स मौजूद होते हैं एंड दिस इज कॉल्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब फीमेल के जो गैमीट्स हैं, सेक्स सेल्स हैं, वो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जबकि मेल के सेक्स सेल्स यहाँ एंथर के अंदर मौजूद होते हैं। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, दोनों मेल के और फीमेल के गैमीट्स मिलते हैं, तो तब हमारे पास होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में सीड बनता है। सीड को जब प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा, वाटर मिलेगा, सनलाइट मिलेगी तो वो जर्मिनेट होगा और नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे टू द फर्स्ट स्टेप विच इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता क्या है बेसिकली? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलिनेशन सेम प्लांट्स में भी हो सकती है, डिफरेंट प्लांट्स में भी हो सकती है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स इज बेसिकली कॉल्ड पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? आई विल रिपीट। आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 ऐड करेंगे। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। सो अब हम इस प्रोसेस को एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं कि ये है क्या। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में होती है,
इट इज क्लियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन फ्लावर्स। अब इसमें होता क्या है, गैमीट सबसे पहले बनते हैं, फिर पॉलिनेशन होती है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, फिर सीड बनता है, फॉर्मेशन होता है, और देन होती है सीड की डिस्पर्सल। तो ये 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले होगी हमारे पास पॉलिनेशन, सेकंड हमारे पास होगी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में हमारे पास मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे, आपस में मिलेंगे। जब वो मिलेंगे तो सीड बनेगा। अब सीड ने क्या करना है, जर्मिनेट करना, और वो नया प्लांट बन जाएगा। वो प्लांट से दोबारा से वो साइकिल रिपीट होगा। अब क्या होगा, दोबारा से वो साइकिल रिपीट हुआ, प्लांट बना, प्लांट से फिर पोलन ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे भी ट्रांसफर हो सकते हैं, और सेम प्लांट में भी। लेट सपोज ये इस प्लांट से दूसरे प्लांट पे ट्रांसफर हुए पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन मेल पार्ट से निकल कर गए फीमेल के पार्ट में, यहाँ दोबारा हुई फर्टिलाइजेशन, दोबारा बन गया सीड, फिर हुई जर्मिनेशन, और दोबारा एक नया प्लांट बन गया। तो ये साइकिल रिपीट होता रहता है ऑल द लाइफ टाइम्स में। और इसी तरह हमारे पास वेराइटीज ऑफ प्लांट्स बनते रहते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन। फर्स्ट हमने रिप्रोडक्शन को क्लियर किया कि रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच हमें नए ऑर्गेनिज्म मिलते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स। पेरेंट्स न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाती हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि लाइफ की कॉन्टिन्यूएशन रहे, वो स्पीशी बिल्कुल अर्थ से एक्सटिंक्ट ना हो। फिर हमने ए सेक्शुअल और सेक्शुअल को क्लियर किया। ए सेक्शुअल ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे लेकिन वेजिटेटिव पार्ट से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया ऑर्गेनिज्म बनेगा लेकिन रिप्रोडक्टिव पार्ट से, जो कि फ्लावर है। अब फ्लावर के 2 पार्ट्स हैं, विच इज़ मेल एंड फीमेल। मेल पार्ट इसमें आएगा एंथर और फिलामेंट, और इसके फीमेल में पार्ट में आएगी इसका ओव्यूल, लाइक ओवरी आ जाएगी, स्टाइल स्टिग्मा एंड ओवरी। फिर हमने टर्म पढ़ी पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन। तो ये सारे स्टेप थे जिसके थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपकी हो रही है, गैमीट फॉर्मेशन से स्टार्ट हो रही है। गैमीट सेक्स सेल्स हैं। क्वेश्चन 4 यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लाइक गैमीट्स। ठीक है, डिफाइन गैमीट्स या व्हाट आर गैमीट्स। तो गैमीट्स हमारे पास क्या है, सेक्स सेल्स हैं। 2 टाइप्स के हैं, मेल सेक्स सेल्स, फीमेल सेक्स सेल्स। मेल सेक्स सेल पोलन ग्रेन्स में बनेंगे, पोलन ग्रेन्स हैं, और फीमेल सेक्स सेल्स बनेंगे हमारे पास ओव्यूल्स के अंदर। सो दैट वाज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन। आई होप सो कि ये टॉपिक आप सबको क्लियर हो गया होगा। सो टू ensure कि आप लोगों ने लेक्चर अच्छे से सुना है, you will do comments in the comment box कि which 4 questions I have told you। ठीक है, exercise we'll do at the end। जो 4 questions extra हमने आपको बनवाए हैं, you will comment those 4 questions in the comment box। See you in the next video। अल्लाह हाफिज़।